व्यक्तिगत तौर से मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कोई भी मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करता ही नहीं, करूँगा भी नहीं, आज पहले भी नहीं करता था, टीवी डिबेट में भी नहीं करता। पॉलिसी पर होता है तो उनका पॉलिटिकल चॉइस है। लेकिन जो मैंने कहा था कि कलकत्ता से लोग आ रहे, जैसे बंगाल में यूपी और मध्य प्रदेश इंदौर से आया था विजयवर्गीय, क्या नाम था, कैलाश विजयवर्गीय, उसी तरह से टीएमसी आ रहा है हमारे पास। विश्वास जी, विरजीत जी है, मैडम नायक मैडम है, डे सर है, बिलाल जी है, प्रोफेसर साहब है, गोपाल राय साहब है, सभी जो देखो यार पार्टी के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, तो ये डिसाइड करना और लड़ेंगे हम। और मैंने बोल दिया जब 0 से 36 वो आ सकता है तो सरकार 17 महीने में हम लोग पूरी तरह से लगेंगे बनाने के लिए। और मुझे विश्वास है जो माहौल में देख रहा हूँ कि हम बना सकते हैं। लड़ाई हमारे ऊपर पब्लिक ट्रस्ट है मोदी जी और भाजपा और ये मुख्यमंत्री जी। और जब हम गाड़ी में आ रहे थे तो इतने बीजेपी वाले नेता फोन कर रहा था अध्यक्ष जी को, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा चांस है। ममता बनर्जी बोलती थी कि बाहर से लोग आ रहे हैं बंगाल चुनाव, बोलती थी ना, सब आ गया यूपी मध्य प्रदेश से। अब टीएमसी के लोग कलकत्ता से आ रहे हैं त्रिपुरा में, वो भी वही कर रहे हैं जो बीजेपी किया। बाहर के लोग ही आ रहे हैं ना, त्रिपुरा का कहाँ आ रहा है। हमारे यहाँ तो त्रिपुरा ही है ना, हमको छोड़ के पूरा त्रिपुरा है, वो टीएमसी में पूरा कलकत्ता है। तो आप ही डिसाइड कर लो आपको बाहरी चाहिए कि भीतरी चाहिए। हम तो हमेशा बोलते हैं बाहरी भीतरी सोच लो, हम तो हमेशा बाहरी मानेंगे उसको। हर रोज हमको बोलते हैं सर कलकत्ता से, अरे भाई साहब त्रिपुरा में कोई सब लोग चले गए क्या, गैप हो गया लीडर। तो इसलिए वो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हमारा काम देखिए, ये लोग मजबूत लगता है टीवी वीवी में। कांग्रेस जिस दिन मन बना लेगी लड़ेंगे एक साथ, और सभी लीडर से हमारी बातचीत हो रही थी। इस बार हम लोग ने निर्णय लिया कि लड़ेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, मारेंगे नहीं, मरने को तैयार है लेकिन मारेंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी तो मारेगा, मरने को तैयार नहीं रहता। अंतर वही, नॉन वायलेंस और वायलेंस। Look, the state unit needs organization to work. It needs leadership and organization and structure. That has to be resolved quickly, and that will be resolved. So that's a fact. I mean, I don't know if you know about me, but I'm not saying that I'm different from the rest of them. But at least I can honestly accept the mistakes I have made. And I take responsibility. I'm in charge right now, so it's my responsibility. So we need to make sure that we quickly resolve this PCC, various department units, structure, heads of each of them, responsibilities of each individuals, leadership questions to be resolved finally, and then prepare the team for the next 17 months to. I believe we can come back to power. To be honest, you might think it is ridiculous. And I keep telling everybody one simple thing. BJP was 0, they became 36. We were 28% in the Lok Sabha, we came to 1%. Before that we were close to 40, 39, 40. So the Congress workers, people want the Congress. And I am very clear, political answer to this question. We will have no alliance with the communists, no alliance with the TMC, no alliance. No chance communist. BJP obviously they are my childhood enemies, or from birth, right? Political opponents, enemies would be wrong. Now the next question before you ask is on Tripura Mata. The agenda for their party and our party is more or less similar in terms of fighting for the rights of the indigenous people rights. Rights for scheduled castes, rights for minority, right for the poor and the
excluded people. So their agenda and our agenda are very similar. So we will work very hard to strengthen the party. But I believe that there is an opportunity, and we will see when it comes. But their agenda and our agenda are more or less similar. I strongly believe as a party, Congress, scheduled caste reservation, ST reservation across India was the gift of Nehru ji, Ambedkar ji, Sardar Patel and all the great people of independence struggle. And then Indira Gandhi ji extended it. Rajiv Gandhi ji was the father of the 5th schedule, 6th schedule and 7th schedule to protect the rights of the indigenous people. I don't know how many people remember history, but people must remember Rajiv Gandhi as one of the greatest sons of modern India. The rights of the tribals, which is enshrined, I come from Jharkhand, in the 5th schedule is the only reason, 5th, 6th, 7th schedule, 7th some state, but 6th is primarily our northeast. The rights of the tribal is protected and enshrined only because of Rajiv Gandhi. So for all the indigenous people, I would like to only say through you, that the Congress has been the biggest champion of the indigenous people, the scheduled caste, and the weaker sections. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आवास योजना, इसको पीएम बना दिया, लेकिन हम तो इंदिरा गांधी आवास योजना ही बोलेंगे. वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राइट टू एजुकेशन. हमने गरीब के लिए हम करते हैं. मोदी जी तेल का दाम बढ़ा देता है, मोदी जी आउटसोर्स कर लेते हैं. 70 साल में जितना संपत्ति हमने देश के लिए बनाया, वो बोल रही ना निर्मला सीतारमण, मोनेटाइज, वो 70 साल में ही हो ना. हर साल 7 लाख करोड़ कमाने के चक्कर में, वो कहां से है? 70 साल में कुछ नहीं हुआ. तो ये स्थिति है कि आपका जो है तेल हुआ, गैस सिलेंडर दुगना, तेल 200 रुपए, पेट्रोल अगर 100 रुपए पहुंचता है तो मोदी जी के लोग बोलते हैं कि अफगानिस्तान चले जाओ. भाई साहब, अमेरिका में भी तो सस्ता है, अमेरिका क्यों नहीं भेज रहे हो? मोदी के नेता आपने सुना होगा बोला कि काबुल चले जाओ. अरे भैया, स्वीडन में भी सस्ता है, जर्मनी में भी सस्ता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका में तो सस्ता है ही. मोदी जी महान है, क्योंकि मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है. कुछ भी हो सकता है मोदी जी के साथ. तेल 200 रुपए हो सकता है, पेट्रोल डीजल 100 रुपए से ऊपर हो सकता है. मोदी जी हैं तो मुमकिन है. आपको याद होगा नारा, याद है ना? मोदी है तो मुमकिन है. मुमकिन नहीं. मोदी है तो बेरोजगारी मुमकिन है. देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा गरीबी, 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए थे जो कांग्रेस सरकार ने ऊपर लाया. कांग्रेस सरकार ने 10 साल में 26 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले आए. मोदी जी है तो मुमकिन है, उन्होंने 26 को भी वापस भेज दिया. देखिए मोदी जी कितने महान हैं. अमीर लोग को, अच्छे करने वाले को गरीब बना दिया. 26 करोड़, वो भी छोटा मोटा नहीं, 26 करोड़. अब यहां पे मिडिल क्लास के लोग ज्यादा हैं. मिडिल क्लास का 12 करोड़ टोटल मिडिल क्लास पॉपुलेशन है इंडिया में, उसमें से 3 करोड़ मिडिल क्लास को पॉवर्टी लाइन के नीचे भेज दिया. मोदी है तो मुमकिन है. 3 करोड़, 30% ऑफ मिडिल क्लास हैव कम बिलो द पॉवर्टी लाइन. जिसके पास मोटरसाइकिल था, जिसका नौकरी था, वो गरीबी रेखा से नीचे आ गया. मिडिल क्लास. महंगाई, सामाजिक समरसता. चीन के बारे में जितना बोलिए कम उतना ही ठीक है. राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, लेकिन मोदी जी ने जो है चीन को जो है ना तो लाल आंख दिखाया. लाल आंख सिर्फ कांग्रेस के लिए रखता है. चीन को दिखाने का, लाल आंख दिखाने का सच्चाई ये है कि इस देश में पहली बार इतने 50 साल में इतने असुरक्षित हुआ देश का सीमा. सबसे बड़ी देशद्रोही पार्टी. और एक चीज मैं बात बताना चाहूंगा, आज मैं पढ़ रहा था, एक राजा मोहन जी हैं, एक बहुत ही अच्छे लेखक हैं, एक्सपर्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी. वो बोलते हैं कि ये सरकार इतनी अजीब है कि तालिबान से बात कर सकती है, लेकिन अपने देश में अपने भाई और बहनों के बीच में संबंध बनाना नहीं रख सकता. तालिबान से बात करने के लिए मोदी जी तैयार है, लेकिन अपने देश में जो अपने माइनॉरिटी के लोग या अलग समाज के लोग को जो है उनके ऊपर जो है हमेशा खतरा मंडराता रहता है. तो ये है देश की स्थिति. महंगाई,
बेरोजगारी, असुरक्षा और स्कैम। यहां पर अगर आप कोई पत्रकार होंगे, विश्वास है ब्रिजेश सिन्हा साहब, मुझे पक्का विश्वास है कि पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर इनके फोन में घुसा दिया 100%। आपके फोन में भी होगा, क्योंकि मोदी जी को पता लगाना है कि हम खा रहे हैं, बीबी से क्या बात हो रही है। इनको आदत हो गई है मोदी जी को। मोदी जी सुनना चाहते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, तो इसलिए सबके फोन में जो है जासूसी सॉफ्टवेयर डाल दिया। तो हम फोन करेंगे अपने वाइफ को कि आज खाना क्या बना, तो मोदी जी को मालूम हो जाएगा पहले कि आज राजमा बन रहा है, आज दाल बन रहा है। ये देश की स्थिति है, कभी नहीं हुआ पिछले इतने साल। पूरी तरह से नशा मुक्त हो जाएगा। नशा मुक्त तो छोड़ दो, गांजा का जो कल्टीवेशन, जिस तरह से फर्टिलाइजर यहाँ पर बिक रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है। त्रिपुरा जो है रिकॉर्ड तोड़ रहा है गांजे के प्लांटेशन में। तो मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि त्रिपुरा को एडिक्शन फ्री कर देंगे, और इनके समय में जो है पूरी तरह से चिलम बनने का काम कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के सामने तो हमारे साथ बाएं तरफ एक व्यक्ति है, दूसरे तरफ दूसरे व्यक्ति, दोनों के ऊपर हमला हो चुका है। ब्रिजेश सिन्हा साहब के ऊपर हमला हो चुका है, विश्वास सर के ऊपर हमला हो चुका है, और कांग्रेस के तो गोपाल राय साहब के जो आज नहीं उपस्थित, उनके ऊपर भी हमला हुआ था। बचा क्या है बताइए? हम ही बचे हैं, क्योंकि एक बाएं हो गया, एक दाएं हो गया, तो हम ही बचा है। ये है बीजेपी, मानिक सरकार साहब के ऊपर हमला। यार पॉलिटिकल ओपोनेंट्स इस देश में, जब कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए एक न्यूज एजेंसी में बोल रहा था, आपके हम राजनीतिक प्रतिद्वंदी, दुश्मन नहीं। अब विपक्षी दल के जो है बिल्डिंग और ऑफिस तोड़ने लगे, तोड़ रहे ना, कार्यालय तोड़ने लगे, क्योंकि ये कभी जीत नहीं पाएंगे। अगले बार तो ये जो है ना, क्या नारा था इनका, चलो चलो पलटाएगा, क्या था, चलो तो इन्हीं का वही हो जाएगा। वो जो नारा उन्होंने लगा उन्हीं के साथ होगा, चलो पलटाएगा, हाँ उड़ेगा, क्योंकि कुछ काम नहीं हुआ है। मैं तो बता रहा हूं ना कि त्रिपुरा की जनता को देखना चाहिए। एक भी पन्ना, मैं तो रैंडमली उठाता हूं ना, सेटिंग अप डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री गाइडेंस सेंटर इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, 0। आप ही उठाइए कोई कागज, दूसरा कागज, इस्टेब्लिशिंग डिस्ट्रिक्ट यूथ क्लब्स एंड स्पोर्ट्स लीग, नहीं हुआ। ड्राइंग इंप्लीमेंटिंग टाइम बाउंड प्लान फॉर डेवलपमेंट ऑफ ओबीसी, एसटीसी एंड बीपीएल फैमिली, नहीं हुआ। कोई भी चीज में उठा के बोल रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। तो लॉ एंड ऑर्डर गैप, नौकरी गैप, करेक्ट, टोटल मिसरूल। तो ये बेसिक चीज जो है, जो अनएम्प्लॉयमेंट और इंपॉर्टेंट पार्ट जो नेशनल लेवल में, जो ये हुआ त्रिपुरा की स्थिति। और हमें पूरा विश्वास है कि एक राजनीतिक बदलाव का हवा चल रहा है। उसके बारे में मैं विशेष में आपको और ध्यान आकृष्ट करूंगा बात। देश के बारे में छोटा सा, इस देश में मैंने कभी नहीं सोचा कि इतने साल बाद, शांति के बाद, किसी भी आदिवासी व्यक्ति को गाड़ी से खींच करके ट्रक से नीमच मध्य प्रदेश में चोरी के गलत आरोप में मार दिया गया। कभी नहीं हुआ। मैं सुनता था जब मैं आईपीएस में था कि 50 साल पहले हुआ था किसी समय झारखंड। 10-15 दिन पहले नीमच में एक आदिवासी व्यक्ति को गाड़ी से, जिंदा व्यक्ति को गाड़ी से खींच करके मारा गया। दिल्ली में 2 दलित बच्ची 13 साल की बलात्कार होती है, हत्या होती है, और फिर लाश को जलाने के लिए जो है जलाया भी जाता है। एक का तो जो है लाश, आधा हुआ जला हुआ लाश बेचारी बच्ची का निकालते हो, दूसरा का गरीब माँ जो है जब गुहार लगाती है तो राजनीतिक हस्तक्षेप से उसका केस होता है। स्केड्यूल ट्राइब, स्केड्यूल कास्ट, हाथरस, माइनॉरिटी। आप अगर चूड़ी बेचते हैं, अगर 2 साल चलाते हैं, और अगर आपने दुकान का नाम कुछ और रख दिया, आपको मार दिया जाता है। कोई गरीब बच्चा, मुसलमान बच्चा जाता है पानी पीने के लिए मंदिर में, तो आपको पीट करके जो मर्द छोड़ देते हो। जब तक हमको याद है कि इंडिया इज अ सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक,
मोदी जी और बीजेपी को कॉन्स्टिट्यूशन को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके विचार तो अलग है। लेकिन जिस देश में हमारे अपने भाई को धर्म के नाम पर बच्चा बच्ची को आप मारोगे, और किसको मार रहे हो? चूड़ी बेचने वाले। किसको मार रहे हो? डोसा बेचने वाले। किसको बेचने वाले? बच्चे को जो पानी पी रहा है। तो यही भारत चाहते हैं क्या? तो सामाजिक समरसता खत्म, भारत का एकता का सुंदरता था, SC ST OBC माइनॉरिटी तो खत्म, इंडिजिनस पीपल का तो कोई। अब दूसरा, महंगाई। अब तो 200 रुपए है ना तेल, खाने वाला तेल कितना है? 200 रुपए। तो आप लोग जो इस देश में सब्जी को पानी में उबाल रहे हैं और 2-3 बूंद तेल डाल रहे हैं। नॉट विद TMC, right? Not with CPI, obviously not with BJP. I said that the Tripura Mata and we have a lot of common agenda with us. Now, whether that alliance will happen or not happen is a matter of future conjecture. But you will form alliance with the left parties in West Bengal. Is there We are not doing the left alliance, I told you. So, sir, if I repeat the same thing, maybe we did it. We are not doing it here, and I don't think we'll do it again anyway. I don't think so. That we'll ever have an alliance again with the left. My view, I may be wrong. I can only speak on Tripura क्योंकि मेरा तो पे स्केल सिर्फ त्रिपुरा से संबंधित है, नागालैंड और सिक्किम से। पता है ना पे स्केल? तो हमारा पे स्केल बंगाल के बारे में बोलने के लिए नहीं है। Sir, you said about Trinamool Congress that people are coming from outside and it's a whole, outsider phenomenon, as you see all in Bengal. People are coming from Madhya Pradesh and Uttar Pradesh and all. You said, where are the leaders of Tripura? Incidentally, people from Congress have joined Trinamool Congress till now. We have got Subal Bhaumik, who contested the Lok Sabha election on a Congress ticket last election. And we have got former Minister Prakash Das, Youth Congress Vice President, basically all the leaders who are, moving Trinamool Congress around these days. Yeah, so they are basically from Congress and communist parties and other parties haven't really, BJP hasn't really gone till now in that larger proportion. So do you think in some way, because Congress vote bank was a major, as you correctly mentioned some time back, that Congress had almost 40+%, and the majority of it floated to BJP, which floated BJP to the ruling power, 2018. So there is a floating potential again. No, you said it. Major parties are. But let me mention it. TMC, no chance. No chance. Communist, and obviously BJP to सवाल ही नहीं. Yeah. My question is that only because in the national perspective, if you see in national politics, there's something going on. Yeah, but that's not against the against the BJP. Is that having an impact in Tripura? No. We are very clear on our strategy for Tripura. I tell you, it's in the interest of Tripura. Every congressman, every person should know the Congress is ready to go. It will not align with any of these three parties I mentioned. I mentioned the Tripura Mata only from a common agenda perspective. I don't know what will happen, but at least they like our agenda and we like their agenda. At least we are there in terms of, I told you, the Autonomous Development Council, Section 224, which Rahul Gandhi ji has said, state within state and other discussion. But he has already declared that for that you need to give a written commitment that you go for. Yeah, don't worry on that. We are first conference में सब चीज पूछ रहे हैं। नहीं उनका तो नहीं वो नहीं बोल रहा। I am चाह उनका तो कंडीशन ही रखवा ही है। Yeah, ठीक है। So we will work on. You will work. There are so many political agendas to be discussed. So politics is a matter of give and take, na? The only thing which will drive our discussion with any alliance partner is the issues which are contentious, like changing borders of states, changing borders of the country, is fundamentally something which is not the remit of any state government. It's not a remit, it's a national competition. You can only do it if it's a national government. So the issue is those issues can definitely be discussed in terms of what they want to do, but I'm very clear that changing borders of states is what we fundamentally believe. We don't believe in that. We don't believe in any kind of changing borders of states, because that's not in the remit, and any change in border, if it all happens, has to be a discussion of all the people involved, all the stakeholders, and it cannot be only Tripura. It will be other states also, other nations also. So that is much beyond anyone's discussion level. We are talking about Tripura election and Tripura
So there is no question of those, and that's not beyond. That's No, but beyond. then as the question, sir, this issue is the I don't- primary issue of Tripura Mata, which you said you have got similarities with, No, as per agenda is no, concerned. Tripura Mata's primary agenda similarities follow. Looking after the indigenous people, protection of minorities. Agenda 1, Agenda 2, Agenda 3, Schedule Caste, upliftment. So we have 3. You may not have 4 and 5. That's part of life. But all powers within the Constitution, only within the Constitution, to empower, only within the limits. Our borders, our limits are the borders of the states, our border, and the borders of the Constitution. But there is so many other common ground. Autonomous Development Council, more power, representation of tribals and indigenous people and more associated, more in larger percentage. Those are issues which we can discuss now. I don't think we would ever discuss issues which are, fundamentally, which involves the integrity of the states or the country. And we should. That's not, I strongly believe we should be discussing that. Whoever wants to go should go. Simple. Like Mr. Gandhi said, it's a fight for the ideology of the country and the soul. You don't believe in what we stand for, then I can't stop you from going. But I'd rather have 100 dedicated congressmen than 10,000 unreliable political people. I won't use one. I'd rather have 100 people who can fight, because people vote for you. First question is, if you have 100, 200 good leaders, you'll win the state. You don't need more than that. So everything इधर-उधर जाएगा, भागेगा, छोटा जाएगा, क्या करोगे? Ideological angle था. हमको तो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ना है. ये देश को बर्बाद कर चुका है. ये देश को तोड़ के छोड़ेगा. They will destroy the soul of India. They will destroy the backbone of economic backbone of India. Today, 1% of Indians own 50% of India. Data, 1% Indians own 50% of India. The poorest 60% own less than 3% or something. 60% आबादी इस देश का सिर्फ 3 या 4% पूरे देश की संपत्ति पर उनका कब्जा है. 60% देश. 1%, less than 1% own 50% of India. ये बीजेपी में ही हो सकता है. पर मुमकिन है, मोदी जी तो मुमकिन है, तो एक बार मुमकिन कर दिया ना बस, 1% से 50 कर दिया. Mr. Kumar, there were leaders of Congress who shifted to different parties, Trinamool Congress and then to Bhajpa. And there are rumors going around that they might be considering to shift parties once again and they might be thinking of different other avenues. Is your party open for them? I want to tell you with very seriousness from आप लोगों के माध्यम से एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ. जो भी लड़का लड़की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पढ़ेंगे सुनेंगे, अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं, अमीर नहीं हैं, गरीब परिवार के हैं, कोई बाप बड़ा आदमी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. पीसीसी में अपना बायोडाटा दीजिए अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं. हम इस बार के चुनाव पूरा ट्रांसपेरेंटली करें. क्राइटेरिया तय होगा, मेंबरशिप, झंडा करना. कोई भी बच्चा अगर मनरेगा में भी काम करता हो या मर्सिडीज बेंज में घूमता हो, अगर अच्छा बच्चा है या लड़की है, आपके माध्यम से सभी सीनियर को, किसी को भी लड़ना सीवी दीजिए, हम आपको जगह दें. अगर आप सबसे अच्छे हैं उस असेंबली के तो आपको टिकट मिलेगा. हमारे पास ऐसे लीडर्स हैं, देखिए ना, पूरी तरह से ईमानदारी से हम लोग टिकट डिस्ट्रीब्यूट करें. सो एनीबडी हु वांट्स, हु डजंट हैव एनी गॉडफादर, वी आर लुकिंग फॉर यंग पीपल, गुड पीपल हु आर गोइंग टू फाइट एंड फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल. पब्लिक का ध्यान रखो यार, बाकी तो अपने जगह पर. राजनीति में एक ही मकसद होना चाहिए. मैं तो ईमानदारी से कहता हूँ, मैं तो आईपीएस में रह चुका हूँ. उसी तरह से पुलिस की नौकरी सेवा होनी चाहिए, पैसे वसूलना नहीं होना चाहिए. उसी तरह से राजनीति का मतलब सेवा होना चाहिए. जितना सेवा कर सकते हैं, गरीब को मदद करना हमारा पसंद. सो प्लीज, एनी चाइल्ड, द पीसीसी विल रिलीज a news. We will be on Twitter. We will give you an email address. You can send your CV. We will reach out to you. Join the movement to make Tripura the great state it has always been.
one of the prettiest state I have seen. I have never come to Agartala, but I am totally amazed with the beauty of the state. I have never seen a more greener, nicer people. Very, 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 very beautiful state. Good people, wonderful culture. Really remarkable. My bad luck, I didn't come earlier. My wife has come here. She was in the company, in the revenue service. तो देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस दो खास विषय पर है। एक तो त्रिपुरा से संबंधित है और एक देश से संबंधित। तो दोनों में जो आधा आधा करके जो, और उसके बाद आप लोग जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं हमसे पूछ सकते हैं। तो तीन बात। पहला है कि देखिए, त्रिपुरा में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, त्रिपुरा के जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। आप और त्रिपुरा के जनता ने किस उम्मीद से ये सरकार को जो है प्रतिस्थापित किया, उसके बाद आपने देखा होगा, और मैं शुरू करता हूँ इन्हीं के विजन डॉक्यूमेंट से, ये इनके वादे थे। तो मैं चेक कर रहा था कि जो भी पन्ना मैं खोलूं, आप बताइएगा। एक पन्ना में खोल के देखता हूँ कि हर एक कॉलेज, हर एक असेंबली में कॉलेज खुल गया कि डिग्री कॉलेज नहीं खुला। फिर मैं दूसरा पन्ना देखता हूँ कि सुएज ट्रीटमेंट प्लांट पूरा त्रिपुरा में बनाएंगे, वो नहीं हुआ। फिर मैं ऐसा एक पन्ना उलट देता हूँ और देखता हूँ कि बिजली की जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होगा पूरे प्रदेश में। और आप तो जानते हैं कि अब तो पावर कट होने लगा। कांग्रेस के यूपीए के समय में, जब केंद्र में यूपीए सरकार थी, तो त्रिपुरा जो है बिजली को एक्सपोर्ट बाकी अलग अलग दूसरे प्रदेश को देते थे, क्योंकि हमारा जो है सरप्लस पावर होता था, लोड शेडिंग की बात ही नहीं होती थी यूपीए के साथ। अब जो है त्रिपुरा में जो लोड शेडिंग होने लगा, 3-3 घंटा 4-4 घंटा देहाती से अगरतला के बाद। इस सरकार ने कहा था कि नौकरी हम सबको देंगे और मिस कॉल के द्वारा देंगे नौकरी। आपको याद होगा कि नौकरी के लिए कोई दौड़ने की जरूरत नहीं है, मिस कॉल। ये मिस कॉल वाली पार्टी जो मेंबरशिप भी वैसा ही करती है, नौकरी भी वैसे ही करती है, और कॉल भी मिस, क्योंकि आपने मिस कॉल किया था तो नौकरी भी मिस हो गया। क्योंकि बीजेपी ने मिस कॉल किया कि मिस कॉल, तो नौकरी भी मिस हो गया, कॉल तो मिस हो ही गया, लेकिन नौकरी भी मिस हो गया। जहां तक टीचर की बहाली हो, जहां तक कर्मचारी के वेतन को बढ़ाने की बात हो, जहां तक 7th पे कमीशन को लागू करने के लिए बात हो, पूरी तरह से फेल। और त्रिपुरा में सबसे बड़ी चुनौती नौकरी के बारे में जो षड्यंत्र चल रहा है, आप त्रिपुरा के जनता को एक चीज बात समझ में आनी चाहिए। देखिए, त्रिपुरा में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर गवर्नमेंट होता है। त्रिपुरा प्रदेश का सबसे बड़ा एम्प्लॉय सरकार हमेशा होती थी। अब ये बदमाश बीजेपी सरकार ने एक तो सभी काम को आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स जब किया तो कौन हो रहा है? इनके दोस्त जो है बाहर से आ रहे हैं। त्रिपुरा का कोई आदमी नहीं चला रहा है उस कंपनी को, बाहर से आ रहा है एनजीओ, बाहर से आ रहा है लोग, दिल्ली से, कभी मध्य प्रदेश से। त्रिपुरा का किसी भी बच्चा या बच्ची को नहीं दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। और तो और क्लास 4 और क्लास 3 में पूरे देश में लोकल लोग के लिए एम्प्लॉयमेंट, डोमिसाइल मैंडेटरी है। मैं तो झारखंड से आता हूँ। झारखंड से आप जो है क्लास 3 और क्लास 4 को तो कैसे पब्लिक कहाँ से डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनिवार्य है, लोकल रेसिडेंस अनिवार्य है। त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री, जो इनकी सरकार इतनी मान हो गई है, इतना जो है बड़ा दिल हो गया कि पूरा भारत के लोग को बुलाने लगा है, लेकिन त्रिपुरा के लोग को भूल गया। नो डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड इन त्रिपुरा फॉर क्लास 3 and 4। इससे ज्यादा बड़ा अन्याय क्या हो सकता है बताइए? क्या त्रिपुरा का बच्चे और बेटी को नौकरी नहीं मिलेगा क्या त्रिपुरा में, कि बाहर के लोग आएंगे? क्योंकि ये बीजेपी है, इसको तो मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? हिंदू मुसलमान शुरू कर देगा।
पकड़ लेगा किसी को, धर्म के नाम पर जो है दंगा कराएगा। कोई शासन से मतलब नहीं है। नफरत फैलाना इनका हमेशा जो है चुनाव जीतने के लिए एक ही तरीका है। और इस इलाके में कभी जो है मैं देख चुका हूँ कि जिस तरह से सभी समाज के लोग एक परिवार जैसे रहते हैं इतने सुंदर तरीके से, ये बीजेपी उसको भी बिगाड़ने के चक्कर में